5 young footballers the club should be looking at right now. As you know कि transfer market already on हो चुका है and काफी सारे big names हैं and they are moving out. And यहाँ पे in this video we're gonna tell you about those 5 players which we think should be leaving because they are great talents and उनका ये talent किसी एक बढ़िया टीम में जरूर से इस्तेमाल किया जा सकता है. So आज की वीडियो में let me tell you about them. So अगर आप यहाँ पे चैनल पे first time आए हैं तो consider subscribing to this channel because we keep out bringing these kinds of video just for you and on a daily basis. So drop a like on this video and let's proceed. Oh, and by the way, let me tell you that this video is sponsored by OneFootball application. That is my only stop for everyday footballing news because on OneFootball application you get news every single day and if you turn on the notification you will be notified of the every single transfer that happen. Also if you follow your favorite team and if you want to follow them very deeply, so OneFootball application पे आपको अपनी टीम के regarding सारी news and information updated मिलते हैं every single day. So that is the best footballing application मेरे भाई. Why do you want to go any place else if OneFootball offers you all these kinds of things at one single place? So all you have to do is scan this QR code right over here or go down into my description, download OneFootball application from over there. So सबसे पहले प्लेयर यहाँ पे है हमारे पास नीस का 22-year-old डिफेंडर जीन क्ले टोडिबो. Yes, you heard it right. ये एक प्लेयर था that failed at FC Barcelona and now he has been making moves in the Ligue 1. Nice पे he has played alone last season 40 matches and has been one of those players जो कि यूरोप के मार्केट में काफी ज्यादा नाम कमा रहा है. So he has been linked with a lot of teams मेरे भाई. प्रीमियर लीग की टीम इसको as a replacement of the main starting defender देख रही है. यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड जो टीम है यहाँ पे वो है सेविया because as you all know कि Diego Carlos has left for Aston Villa. साथ ही साथ जूल्स कुंडे to Barca can also happen and so now they are looking to sign this player. अब यार इसमें ऐसी खासियत क्या है? जीन क्ले टोडिबो ऐसा क्या खास कर दिया लीग वन में नीस से दैट इतनी सारी टीम पागल होगी इसके लिए. द थिंग इज दिस गाय इज रियली गुड इन डिफेंडिंग. जब ये बार्सिलोना पे आया था पर्सनली बीइंग अ बार्सा फैन आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज दिस गाय हैड कंपोजर, दिस गाय हैड पेस, दिस गाय कैन रीड द प्ले एंड कैन डिस्ट्रीब्यूट द बॉल वेरी वेल भाई. तो ये सारी स्किल एबिलिटी के साथ एक्शन पैक्ड एक बंदा था बट देन ही डिडंट रियली वर्कड आउट एट बार्सिलोना. सो बार्सिलोना ने इसको ऑफलोड कर दिया टू नीस for around 8 million pounds. Now the thing is that Sevilla want to sign Jean Claire Todibo and Barcelona ने इसके ऊपर एक 25% का future sale clause लगा रखा था. So now what Barcelona is trying to do is कि अगर नीस से जीन क्ले टोडिबो सेविया जाते हैं तो बार्सिलोना ये 25% फ्यूचर सेल के प्राइस को स्लैश ऑफ करेगी एंड इन रिटर्न दे वुड आस्क फॉर जूल्स कुंडे to be sent to Barcelona for just 35 million euros. That is some business lapota. If that happens मेरे भाई I would be really happy. And यहाँ पे सेविया पे they'll get a very good player in Jean Claire Todibo who has played at the top levels मेरे भाई. He has played against great footballers. So I think मेरे भाई this guy is ready for the move out. और साथ ही साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यहाँ पे. मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इसको स्काउट कर रही है. They wanted to sign लिसांड्रो मार्टिनेज but ये उनका प्लान भी है. तो with यूनाइटेड, न्यूकासल is also interested, Napoli is also interested in signing this guy और जो प्राइस कोटेड है वो है जस्ट 17 मिलियन यूरोस मेरे भाई एंड इसका कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक का है. सो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग स्टील. सो लुक आउट फॉर दिस लैड. सो द नेक्स्ट प्लेयर ऑन द लिस्ट इज 20-year-old स्टाडे रेनेस का प्लेयर कमालदीन सुलेमाना. यस मेरे भाई, द 20-year-old मैजिकल विंगर, लेफ्ट विंगर प्रोबेबली राइट फुटेड, इन्वर्टेड विंगर कह सकते हो, इज ऑन द यूरोपियन मार्केट. यस ऑब्वियसली इफ यू आस्क मी स्टाडे रेनेस डोंट वांट टू सेल हिम. उनके पास कॉन्ट्रैक्ट अभी काफी लंबा कॉन्ट्रैक्ट पड़ा यहाँ पे सुलेमाना के लिए बट देन लिवरपूल वांटेड टू sign this guy मेरे भाई because Klopp wanted to sign this pacey winger and अभी I doubt that Klopp can get him. The thing is कि ये बंदा was on the market. If teams would have approached स्टाडे रेनेस दे वुड हैव गॉट हिम बट अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम इस बंदे को और देना चाहिए. ठीक है, टॉप लेवल पे लीग में इसने खेल रखा है. ही इज अ पेन इन द एस मेरे भाई. लेट मी टेल यू, आई हैव सीन हिम प्ले एंड आई हैव सीन हिम कॉज डिस्ट्रक्शन अगेंस्ट द ऑपोजिशन राइट बैक एंड लेफ्ट राइट सेंटर बैक वाले पोजीशन डिफेंडर्स के बीच में. एंड मैन दिस गाय इज रियल मेनिस. पिछले साल इसने 20 मैचेस में 4 गोल मारे हैं. ऑब्वियसली ठीक है बहुत ज्यादा नंबर्स इसके नहीं है बट देन मेरे भाई अगर नंबर्स को हटा के आप इसके प्रोग्रेस की बात करो सो दिस गाय इज रॉ टैलेंट. याद करो वो उस्मान डेम्बेले, वो स्टार्टिंग बोरुसिया डॉर्टमुंड वाला याद आ रहा है. कमालदीन सुलेमाना इज जस्ट दैट मेरे भाई. रॉ टैलेंट, शेयर पेस इस बंदे के पास है. ऑब्वियसली इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है 2026 तक है बट देन यू कुड गेट हिम एज चीप एज
18 million euros. So इस बंदे का मैं प्लेइंग स्टाइल बताऊं, सबसे पहले तो he has got pace to burn. He is great in excellent 1v1 situation and he is also a very terrific crosser. तो अगर आप बात करोगे readiness की, is he ready for a move out? I would still say यार कि नहीं, not right now. He's just 20 years of age. मेरे हिसाब से एक साल और इसको देना चाहिए to see what he can really develop into and then we can see actually कि किस टीम के लिए ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आ सकता है. आपके हिसाब से where will Kamaldeen Sulemana fit? Let me know in the comments down below. So the next player to look out for is Cody Gakpo. PSV का 23-year-old right-footed left winger, inverted winger कह सकते हो. This guy is one of the players to look out for. बंदा Eredivisie में one of the best talents है मेरे भाई. Has played on the left hand side of the pitch, right hand side and even as a striker. अभी पिछले नेशंस लीग के मैचेस में नीदरलैंड के लिए this guy got his debut and वेल्स के अगेंस्ट he also scored his first goal. लास्ट सीजन की अगर मैं बात करूँ तो टोटल मिला के 36G+A था इसका in 46 गेम्स एंड मेरे भाई PSV इसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट रख चुकी है दैट इज अप टिल 2026. तो बहुत ही इसकी ईजी डील नहीं होने वाली है. दे आर नॉट गोना गेट हिम फॉर चीप. बंदे का अगर ट्रांसफर मार्ट पे अगर आप प्राइस देखोगे सो दैट इज 30 million euros जो कि कोटेड है. सो अब बंदा खेलता कैसा है? ही इज वेरी क्विक. फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ नेचुरल विंगर. ही आइडोलाइजेस थियरी ऑनरी. कहता है कि थियरी ऑनरी टॉल है एंड इज वेरी फास्ट, सो मैंने उनको आइडोलाइज किया. बेसिकली ही इज जस्ट अ किड. ऑब्वियसली 23 ईयर्स की एज है यार. काफ़ी मतलब मेच्योर तो मैं नहीं कहूँगा इस बंदे को, बट स्टिल आई हैव सीन व्हाट दिस गाय कैन डू यार. तो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इसको फुटबॉल की. इज वेरी क्विक 1v1 सिनेरियोज. वन टच फुटबॉल खेलने भी बहुत अच्छा है. कैन फिनिश एज वेल. हैज़ एन आई फॉर दोज पासेज एज वेल यार. एक विंगर को वो फाइनल थ्रू बॉल फीड करना टू हिज स्ट्राइकर्स, टू हिज ऑन रशिंग फुल बैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे कोडी गैक्पो कैन ऑल्सो डू दैट. तो इफ यू आस्क मी इज ही रेडी फॉर अ मूव, आई वुड से येस. कोई एक प्रीमियर लीग की एवरेज मिड टेबल टीम के लिए ही वुड बी अ वेरी गुड पिक, मे बी इवन अ स्टार्टर. बट देन यहाँ पे अगर बात करोगे टॉप टीम्स का, अगर उसको साइन करेंगे ही विल डेफिनेटली बी ऑन द बेंच मेरे भाई. सो आई डोंट वांट कि कोडी गैक्पो अपने करियर को थोड़ा सा हैम्पर करे सिटिंग और वार्मिंग अप द बेंच फॉर बिग क्लब्स. बट यहाँ पे आई होप कि ही मूव्स आउट टू अ प्रीमियर लीग क्लब जहाँ पे और बेहतर ये अपने आप को डेवलप कर पाए अंडर सम गुड मैनेजर्स. तो ऑब्वियसली दे नॉट सेइंग दैट कि नीदरलैंड में अच्छे मैनेजर्स नहीं है, बट देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस गाय इज रेडी फॉर द मूव. नेक्स्ट प्लेयर ऑन आवर लिस्ट इज चार्ल्स डी केटलेरे मेरे भाई. वन ऑफ द टैलेंट्स इन द अपकमिंग फुटबॉल जनरेशन. 21-year-old क्लब ब्रूगे का स्ट्राइकर कहूँ मैं इसको, राइट विंगर कहूँ, लेफ्ट विंगर कहूँ, नंबर 8 कहूँ, नंबर 10 कहूँ, आई डोंट नो मेरे भाई. दिस गाय इज द क्लब ब्रूगे अकेडमी प्रोडक्ट एंड हैज played everywhere on the pitch apart from the defensive positions, but he has played on the left wing back position as well मेरे भाई. तो highly adaptive है बंदा. इस बंदे को अगर मैं एक शब्द से डिस्क्राइब करना चाहूंगा तो I would say intelligent or I would say adaptive, because obviously given his natural instincts I see him as an attacking midfielder and यही हर जगह पे कहा जाता है कि he is primarily an attacking midfielder, but this guy is highly adaptive. सच बात है यहाँ पे कि AC Milan want to sign this guy to sort their right wing वाला issue. Junior Messias finally renewing his contract, परमानेंट हो चुका है, so he would be staying at AC Milan. भाई what a story by the way. and यहाँ पे उन्होंने चार्ल्स डी कैटलेरे के लिए obviously bid किया था 20 million euros, but क्लब ब्रूगे ने रिजेक्ट कर दिया because Leeds also want to sign him and Leeds ने 30 million euros plus का ऑफर दिया था, which is also kind of rejected because जहां तक बात है चार्ल्स की, he wants to be at AC Milan. He has been a fan of AC Milan and he wants to reject every other offer because Leeds want to go as high as 35 million euros. and मेरे भाई Leeds भाई साहब तगड़ा बिजनेस करे. they have made more transfers than Chelsea and Manchester United combined. 5 साइनिंग कर ली. अभी लास्ट कल ही एक साइनिंग और एक्स्ट्रा उन्होंने की है लुइस सिनिस्टेरा की. This guy is also very good, probably would have made my list. अगर उसका ट्रांसफर नहीं हुआ होता he would have been here in my list. तो यार एक बहुत ही तगड़ा विंगर यहाँ पे लेके आई है लीड्स एंड भाई दे हैव सेव्ड रेलीगेशन एंड यहाँ पे दे हैव साइंड सिक्स प्लेयर्स मेरे भाई. सो बहुत अच्छा यहाँ पे चल रहा है लीड्स के लिए. बट देन जेसे मार्श वांट्स टू साइन चार्ल्स. मेरे हिसाब से दे कैन गेट हिम ओनली इफ दे मैच दी आस्किंग प्राइस फ्रॉम क्लब ब्रूगे, जो मुझे लगता है कि अराउंड 35-37 मिलियन यूरोज होगी. अगर एसी मिलान को चाहिए तो दे कैन ऑल्सो गेट हिम फॉर दैट सेम प्राइस. अब बंदा कैसा खेलता है मेरे भाई. दिस गाय इज प्योर मैजिक, जैसे कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ. कैन बी डिप्लॉयड इन एवरी पोजिशन इन दी फॉरवर्ड अटैकिंग एंड मिडफील्ड लाइन्स, बट मेरे हिसाब से हिज बेस्ट पोजिशन इज अ सेकेंड स्ट्राइकर. नेचुरली दिस गाय कैन स्कोर गोल्स, इज गुड इन फिनिशिंग, बट देन जो सबसे बढ़िया एट्रीब्यूट है इसका वो है फाइंडिंग द स्पेस.
तो दिस गाय इज वेरी गुड इफ प्लेड अलोंगसाइड अ नेचुरल स्ट्राइकर. अगर मैं कहता हूँ एसी मिलान पे देयर इज डिवॉक ओरिगी और ज़्लाटान इब्राहिमोविच एज वेल, सो मेरे हिसाब से ही कुड बी रियली गुड ओवर देयर. इवन एट लीड्स जहाँ पे पैट्रिक बैमफोर्ड ने मेयरली 560 मिनट्स खेले हैं लास्ट सीजन टोटल मिला के, आई थिंक दे हैव टू गेट सम अदर स्ट्राइकर रादर देन दिस गाय बिकॉज ही इज नॉट अ स्ट्राइकर एंड लीड्स माइट मेक a mistake signing him, considering him as a striker. The last player on our list is, and mere bhai, this guy is really good and I have seen him play against Barcelona and I have seen what he can do. Kerim Aktürkoğlu. I don't know if I'm pronouncing the name right, but then ये बंदा Galatasaray का right footed left winger है, 23 years of age, mature obviously है, and by that I mean he is ready for the move to 2026 तक इस बंदे का contract है at Galatasaray and he is valued at only 16.5 million euros. Arsenal and Spurs इस बंदे में इंटरेस्टेड है. लास्ट सीजन के अगर मैं इसके स्टैट्स की बात करूँ तो 10 goals and 9 assists in the Turkish Super League already. and अभी यहाँ पे there are reports कि there are lot of European clubs जो कि इस बंदे को स्काउट किए थे. There were games like Besiktas वाला गेम, Barcelona गेम, जहाँ पे Leon, Atletico Madrid जैसी टीम्स ने स्काउट्स अपने भेजे थे to check this guy out. He is nicknamed as Harry Potter by the Galatasaray Ultras. एंड भाई तुम समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे. अगर प्लेइंग स्टाइल की बात करूँ मैं, सो दिस गाय इज एन इन्वर्टेड विंगर. ही इज अ वेरी टेरिफिक ड्रिबलर. यार बॉल को अपने पैरों से दूर नहीं जाने देता है. द बॉल अपीयर्स टू बी ग्लूड ऑन टू हिज फुट व्हेन ही मूव्स. मैं नहीं कहूँगा कि ये बंदा पेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. एज यू कैन सी अ लॉट ऑफ young wingers like Jeremy Doku, even Sinistera as well, dependent on pace to beat their players. This guy is highly technical. Rather be dribbling in space than using space. I rhymed over there, but then you get the meaning of it, right? This guy is great in crossing. Also likes to arrive in the box in the final third at the end of those crosses as well. Overall अगर मैं कहूँ तो एक बंदा पूरा पैकेज है. A modern day winger who is highly technical as well. तो यार काफ़ी सारी क्लब्स है जो कि इसको साइन करना चाहते हैं. आर्सेनल ने क्लोजली मॉनिटर किया था इसको टू साइन हिम, but then at Arsenal he's going to be a backup to Bukayo Saka. I don't want him to be a backup. I think कि कोई एक mid table team में definite starter हो सकता है. अगर वैल्यू की बात करूँ मैं तो 20 million euros है जो Galatasaray चाहती है. अभी Wolfsburg जो Bundesliga की टीम है, they bid 15 million euros for this guy, but that got rejected. So let's see if this guy will be making a move or not. So guys, these are my 5 picks for the upcoming players to look out for in the transfer market. आप भी अपने कुछ नाम जरूर comment section में छोड़ के जाना and let me know what you think about the video. I'll see you guys very soon. Until then, as always, YouTube का algorithm break करेंगे, comment करेंगे जो भी आपके मन में आ रहा है. Peace out.